وہ دن جب ایک انسان نے کہا، میں جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ ہاں، اگر تاریخ کے صفحات بول سکتے تو وہ ایک چیخ بن کر یہ جملہ دہراتے، جب انسان اپنی حد بھول جائے تو زمین اس کے لیے قبر بن جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا، یہ وہ دن تھا جب ایک انسان نے زبان سے وہ بات نکالی جو صرف شیطان کے دل میں پلتی ہے۔ وہ دن جب غرور نے عقل کو قتل کیا، طاقت نے سچ کو رون ڈالا، اور ایک بادشاہ نے خدا بننے کا خواب دیکھ لیا۔ اس بادشاہ کا نام شداد تھا۔ شداد کوئی فقیر نہیں تھا، کوئی عام حکمران نہیں تھا، کوئی کمزور انسان نہیں تھا۔ وہ اپنے وقت کا سب سے طاقتور فرمانروا تھا۔ اس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ افق اس کی حدوں کو چھو کر تھک جاتا تھا۔ اس کے خزانوں کی چمک سے آنکھیں چندھیا جاتی تھیں، اس کے لشکروں کی گرج سے زمین لرز جاتی تھی، اور اس کے ایک اشارے پر زندگیاں مٹ جایا کرتی تھیں۔ لیکن طاقت جب شکر سے خالی ہو جائے تو وہ عبادت نہیں، بغاوت بن جاتی ہے۔ شداد نے جنت کے قصے سنے تھے، اس نے آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی وہ آیات بھی سنی تھی جن میں وعدہ کیا گیا تھا کہ نیک لوگوں کے لیے ایسی جنت ہے جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ دودھ اور شہد کی نہریں، سونے کے محلات، دائمی سکون اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہ سب سن کر اس کے دل میں ایمان پیدا نہیں ہوا، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگا، اگر خدا جنت بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ اگر جنت حسن کا نام ہے تو میرے پاس حسن کے تمام وسائل موجود ہیں۔ اگر جنت طاقت کا اظہار ہے تو مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ سوچ آہستہ آہستہ ایک خطرناک یقین میں بدل گئی۔ ایک دن شداد اپنے عظیم دربار میں بیٹھا تھا۔ دربار ایسا تھا جیسے انسان نے زمین پر آسمان اتار دیا ہو۔ ستون سونے کے تھے، چھتوں پر چاندی جڑی تھی، دیواروں میں ہیرے اور یاقوت چمک رہے تھے۔ دربار میں علماء بھی تھے، فلسفی بھی، معمار بھی، سپاہی بھی اور چاپلوس بھی۔ شداد نے سب پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم سب جنت کا ذکر کرتے ہو، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں اسی دنیا میں جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ ایسی جنت جسے دیکھ کر لوگ آسمان والی جنت کو بھول جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر فضا منجمد ہو گئی۔ کسی کے ہونٹ کانپے، کسی کے دل نے گواہی دی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر کسی کی زبان میں طاقت نہیں تھی کہ سچ کہہ سکے۔ چاپلوسوں نے تالیاں بجائیں، کمزور خاموش رہے، اور سچ دب کر رہ گیا۔ اسی دن شداد نے حکم جاری کیا، دنیا کے ہر کونے سے سونا، چاندی، قیمتی پتھر، نایاب لکڑیاں اور خوشبوئیں جمع کی جائیں۔ بہترین معمار بلائے جائیں، وہ جو پہاڑ تراش سکتے ہوں، وہ جو زمین کو نقشوں میں بدل سکتے ہوں۔ زمین کا ایک عظیم خطہ منتخب کیا گیا۔ شداد نے کہا، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میری جنت بنے گا۔ یہاں قدم رکھنے والا خود کو خدا کے قریب سمجھے گا۔ کام شروع ہوا۔ ہزاروں مزدور دن رات جھونک دیے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے، آنکھوں میں نیند نہیں تھی اور دلوں میں خوف تھا۔ لیکن شداد کو ان کے درد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے صرف ایک چیز چاہیے تھی، کمال۔ اینٹیں سونے کی بنی، ستون چاندی کے، دیواروں میں زمرد اور یاقوت جڑے گئے، نہریں کھودی گئیں جن میں دودھ، شہد اور صاف پانی بہتا تھا۔ باغات ایسے لگائے گئے کہ ہر موسم میں پھل موجود ہوں۔ پرندے پالے گئے جو ہر وقت خوشی کے گیت گائیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا، مگر یہ حسن اللہ کی رضا سے نہیں، غرور کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ شداد خود نگرانی کرتا، کہیں ذرا سی کمی نظر آتی تو غضبناک ہو جاتا، کہتا، یہ جنت ہے، اس میں کمی گناہ ہے۔ کچھ نیک دل لوگ ڈرتے ڈرتے اسے سمجھانے آئے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اصل جنت اللہ کے اختیار میں ہے، انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
शद्दाद हंसा, एक ऐसा कहकहा जो अक्ल के जनाजे पर पढ़ा जाता है। उसने कहा, अगर खुदा ने आसमान में जन्नत बनाई है तो मैं जमीन पर बना रहा हूँ। देखते हैं कौन बेहतर है। ये अल्फाज जमीन ने भी सुने, आसमान ने भी सुने और फरिश्तों ने भी सुने। साल गुजर गए। आखिर वो दिन आ गया जब शद्दाद की जन्नत मुकम्मल हो गई। दरवाजे ऐसे चमक रहे थे जैसे रोशनी खुद उनसे जन्म ले रही हो। फिजा खुशबू से भरी थी, हर चीज कामिल लगती थी। शद्दाद ने ऐलान किया, आज मैं अपनी जन्नत में दाखिल हूँगा। लोग रास्तों में खड़े थे, कुछ खौफ से कांप रहे थे, कुछ हैरत से देख रहे थे और कुछ दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार रहे थे। जब काफिला जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा तो शद्दाद ने रुककर एक नजर डाली। उसकी आंखों में गुरूर था, होठों पर मुस्कुराहट थी और दिल में ये यकीन कि वो कामयाब हो चुका है। उसने कदम आगे बढ़ाने के लिए पांव उठाया और वो नहीं जानता था कि ये कदम जन्नत में नहीं, फैसले की दहलीज पर पड़ने वाला है। यही वो लम्हा था जहां इंसान की ताकत खत्म होने वाली थी और अल्लाह की कुदरत अपना फैसला सुनाने वाली थी। ये वो लम्हा था जिसका इंतजार जमीन, आसमान और हर मखलूक कर रही थी। शद्दाद, जिसने अपनी जिंदगी की तमाम ताकत, अक्ल और दौलत को सिर्फ एक मकसद के लिए वक्फ किया था, दुनिया पर एक ऐसी जन्नत बनाने के लिए जो आसमान की जन्नत से बेहतर हो, अब इस लम्हे के सामने खड़ा था जहां इंसानी गुरूर की हुदूद एकदम सामने आ गई थीं। शद्दाद का कदम जमीन से उठा और कायनात ने सांस रोक ली। हवा जो अभी चंद लम्हे पहले फूलों की खुशबू और नहरों के बहाव से महक रही थी, अचानक रुक गई। दरख्तों की शाखें जो कभी सरसराहट से झूमती थीं, अब साकिन हो गईं। परिंदे जो खुशी के नगमे गुनगुनाते थे, खामोश हो गए। नहरें जो दूध और शहद की रवानी में बह रही थीं, जैसे जम गईं। शद्दाद ने पहली बार महसूस किया कि कुदरत की दुनिया उसके इख्तियार में नहीं, मगर गुरूर ने उसे चुप रखा और उसने दिल में सोचा, ये सब मेरी अजमत के सामने घबरा रहे हैं, ये फितरत भी मेरे सामने झुक रही है। इसी वक्त जमीन ने गहरे, धीरे मगर मुस्तकिल कराह के साथ लरजना शुरू किया। ये जलजला नहीं था, ये जमीन की आवाज थी जो कह रही थी, ये जुल्म और गुरूर बर्दाश्त से बाहर है। शद्दाद ने पीछे मुड़कर अपने लश्कर को देखा। वही हजारों सिपाही जो उसकी ताकत का मजहर थे, अब साकित खड़े थे, जैसे जिंदगी उनसे छिन गई हो। घोड़े बेजान नजर आए और जरहें सिर्फ धात के टुकड़ों की तरह चमक रही थी। इसी लम्हे आसमान की वसअतों से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर शद्दाद का दिल कांप गया। ये इंसानी जबान में नहीं थी, न ये धमकी थी, न ये आवाज थी, ये अल्लाह का फैसला था। ये फैसला न सिर्फ शद्दाद बल्कि उसके गुरूर, ताकत और फख्र को भी खत्म करने वाला था। शद्दाद ने अपनी जबान खोलने की कोशिश की, मगर कोई लफ्ज अदा न हुआ। उसकी आंखों में हैरत और खौफ ने जगह ले ली। वही जन्नत जो उसने सालों की मेहनत से तामीर की थी, अब उसके सामने गैर हकीकी और खौफनाक लग रही थी। फूल बेरंग, नहरें सूख गईं, महल साकिन, ये सब कुछ लम्हों में बदल गया। शद्दाद ने दिल में एक आखिरी दुआ करने की कोशिश की, शायद अल्लाह की रहमत के लिए, मगर गुरूर ने उसे धकेल दिया कि वो अपनी ताकत पर भरोसा करे। और फिर एक लम्हे में वो सब कुछ हुआ जिसकी पेशगोई तारीख ने पहले ही कर दी थी। शद्दाद और उसका पूरा लश्कर एक ही लम्हे में, एक ही जगह, बिना किसी निशान के फना हो गया। न तलवारें चलीं, न तीर बरसे, न जंग हुई, सिर्फ अल्लाह का फैसला नाफिज हुआ। शद्दाद की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, दिल सूख गया और उसका जिस्म जमीन में घुल गया। वो जन्नत जिसे उसने बनाने में अपनी जिंदगी झोंक दी थी, अब एक वीरान जमीन में तब्दील हो गई। बागात मुरझा गए, नहरें सूख गईं, महल रेत में दफन हो गए। हर वो चीज जो शद्दाद की ताकत और गुरूर की अलामत थी, एक लम्हे में मिट गई। वक्त ने अपना काम शुरू किया। रेत ने नक्शो निगार मिटा दिए, हवा ने खुशबू और चरागों की रोशनी को दूर कर दिया और बारिशों ने बुनियादें खोखली कर दी। साल गुजर गए, दहाइयां और सदियों में बदली और वो अजीम जन्नत एक कहानी बन गई, एक इबरत,
एक नसीहत, एक याद दहानी। लोग जो बाद में वहां से गुजरते हैरत से सवाल करते, ये कैसी जमीन है, कहाँ वो अजमत, कहाँ वो जन्नत। बूढ़े जवाब देते, ये वो जमीन है जहां एक इंसान ने खुद को खुदा समझा था। शद्दाद की कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। नबियों ने उसे मिसाल के तौर पर सुनाया, उलमा ने मिंबरों पर बयान किया और अक्लमंदों ने किताबों में लिखा। ये कहानी आज भी इंसानों को ये सिखाती है कि ताकत, अक्ल और दौलत को गुरूर के लिए इस्तेमाल करना मौत के सिवा कुछ नहीं। शद्दाद का असल जुर्म ये था कि उसने अपनी हद भूलकर खुद को खुदा समझा। वो इंसान था, लेकिन उसकी आंखों ने अल्लाह की ताकत को नजरअंदाज किया। वो बंदा था, लेकिन उसने मालिक को चैलेंज किया। अल्लाह ने शद्दाद को दौलत, ताकत और अक्ल दी थी ताकि वो नेकी और इंसाफ में इस्तेमाल करे। शद्दाद ने उन्हें गुरूर, जुल्म और आजमाइश में बदल दिया। यही वो फर्क था जो उसके अंजाम को इबरतनाक बनाता है। शद्दाद के जाने के बाद भी दुनिया में ऐसे लोग पैदा होते रहे जो गुरूर में आकर आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। आज भी इंसान अपनी ताकत, दौलत और अक्ल पर फख्र करता है, अपनी हैसियत को खुदा के बराबर समझता है। लेकिन तारीख खामोशी से मुस्कुरा रही है, क्योंकि वो जानती है कि गुरूर हमेशा फना की तरफ ले जाता है। शद्दाद की कहानी हमें ये सिखाती है कि जो इंसान झुक जाता है वो बच जाता है, जो अकड़ जाता है वो फना हो जाता है। शद्दाद अकड़ा और फना हो गया। उसका नाम बाकी रह गया, लेकिन उसकी जन्नत नहीं। उसका सबक बाकी रह गया, लेकिन गुरूर फना हो गया। यही अल्लाह का कानून है। ताकत आजमाइश है, दौलत इम्तिहान है और गुरूर हलाकत है। हर दौर के शद्दाद के लिए ये पैगाम है, अगर इंसान अपनी हुदूद को समझे और अल्लाह के सामने झुके तो वो महफूज रहता है। अगर इंसान गुरूर करे और हद पार करे तो अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। ये वाकया आज भी इबरत देता है। ये कहानी न सिर्फ शद्दाद की है, बल्कि हर उस शख्स की है जो गुरूर में आकर सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है। शद्दाद की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की असल ताकत अल्लाह की रज़ा में है, न कि दौलत, न लश्कर, न अक्ल में। जो शख्स अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो कामयाब होता है। जो शख्स गुरूर और खुद पसंदी में डूब जाता है वो मिट जाता है। ये सबक इतना वाज़ेह है कि हर दौर के इंसान को समझना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि ताकत, अक्ल और दौलत सिर्फ आजमाइश है और असल जिंदगी अल्लाह के सामने आजिज़ी में है। शद्दाद की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। ये इबरत की अलामत है, नसीहत की मिसाल है और इंसानी गुरूर की आखिरी हकीकत है। उसकी जन्नत खत्म हो गई, लेकिन उसका अंजाम हर दिल में महफूज हो गया।